Students, today we'll discuss the next topic of chapter structure of atom. The topic is quantum numbers. Student, you know that जब हम एटम के अंदर एंटर करते हैं तो what we got inside an atom? First of all we get shells. शेल के अंदर हमें मिलती हैं सब शेल्स. सब शेल्स के अंदर बेटा ऑर्बिटल्स, and orbital finally contain electrons which is present with either clockwise or anti-clockwise spin. So ये हम पहले करके आ चुके हैं. तो अगर मैं आपसे कहूं that if you want to find out the position of electron, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, so पहले हमें पता करना पड़ेगा कि it belong to which shell. Then we have to find out it belongs to which subshell. Then we have to find out it belongs to which orbital and finally उसके स्पिन क्या है. तो यानी इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग हमें 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है: शेल, सबशेल्स, ऑर्बिटल एंड द स्पिन. These 4 things, these will be calculated with the help of specified numbers. These numbers are said to be the quantum number. So quantum number is a set of 4 numbers which tells us about shell, subshell, orbital of electron and finally spin of electron. सो इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हमें इन्हीं 4 नंबर से फाइंड आउट होगी, क्योंकि हमें सिर्फ 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. फर्स्ट वी वांट टू नो द शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, देन वी वांट टू नो द सबशेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, फिर बेटा ऑर्बिटल और फाइनली स्पिन. तो 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए जो आपके क्वांटम नंबर्स हैं दीज आर 4 क्वांटम नंबर. सो आज के लेक्चर में हम करेंगे क्या? वी विल स्टडी अबाउट द क्वांटम नंबर्स, all type of quantum numbers, what are their values and what are their numericals. So I will start with the first quantum number, that is principal quantum number. First quantum number is principal quantum number. Beta, the symbol of principal quantum number is n. This is the quantum number which tells us about the shell to which electron belongs. ये बेटा हमें शेल के बारे में बताएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है it belongs to first shell, it belongs to second shell, it belongs to third shell. कैसे? Just see out. The symbol of principal quantum number is small n. So just see out. If the value of n is 1, it means the electron is in first shell. If the value of n is 2, electron is in second shell. Value of n is 3, the electron is in third shell. Value of n is 4, the electron is in fourth shell. Similarly बेटा अगर n की वैल्यू 5 होगी तो इलेक्ट्रॉन आपका 5th शेल में होगा. देन वैल्यू ऑफ n इज 6, 6th शेल. वैल्यू ऑफ n इज 7, इलेक्ट्रॉन इज इन 7th शेल. एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज इन्फिनिटी, इट मीन्स आई विल से outside an atom. Okay, these shells, these are also named as K, L, M, N, O, P and Q. सो बेटा ये हमने स्टडी किया आपका पहला क्वांटम नंबर, फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो डायरेक्टली हमें किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेल. सो कहीं पर भी फ्यूचर में अगर आपको शेल को इंडिकेट करना है तो आप हमेशा n से इंडिकेट करोगे. इन एनी न्यूमेरिकल, इन एनी फॉर्मूला रिगार्डिंग द फ्यूचर, किसी भी टॉपिक में व्हेनेवर शेल को इंडिकेट करना है तो हम किस क्वांटम नंबर को यूज करेंगे? n को यूज करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नाउ द सेकंड क्वांटम नंबर इज
सेकेंडरी क्वांटम नंबर, secondary quantum number also said to be, there are some other name of this quantum number, just like it is said to be subsidiary quantum number, azimuthal quantum number, subsidiary, azimuthal and angular quantum number. These are the different name of this quantum number. I'll again repeat the names: secondary quantum number, subsidiary quantum number, azimuthal quantum number and angular quantum number. Beta, the symbol is either small l or m at the base l. Clear to all of you? चलिए now, अब ये क्वांटम नंबर किसके रिगार्डिंग बताएगा? देखिए, हमने स्टार्टिंग कहां से की थी? शेल हमारा हो चुका है। शेल के बाद किसका नंबर आता है? सब शेल। तो ये जो क्वांटम नंबर है, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सबशेल्स इन अ शेल, कि एक पर्टिकुलर शेल में कितनी सबशेल्स हैं, एंड सबशेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबशेल के अंदर है। फिर से क्लियर करता हूं, जैसे अगर हम सेकंड शेल को लेके चलें, ये सेकंड शेल है बेटा, तो सेकंड शेल में हमारी दो सबशेल्स होती हैं, 2s और 2p। ये हमें किससे पता चलेगा कि सेकंड शेल में दो सबशेल्स हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी क्वांटम नंबर। और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s में है या 2p में है, ये भी हमें कौन बताएगा? सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो सेकेंडरी क्वांटम नंबर दो चीजें बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि एक पर्टिकुलर शेल में कितनी सबशेल्स होंगी और आपका इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो जस्ट सी, लेट्स कंटिन्यू दिस नाउ। जस्ट सी सम फॉर्मुलेस। द एल वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला 0 to n-1. This is the formula by which we can find out the, you can say, subshell. Here यहाँ पे n जो है बेटा, n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा? शेल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा। तो बिफोर हम इसमें वैल्यू पुट अप करें, जस्ट सी आउट, अगर आपके l की वैल्यूज आती हैं 0, देन द सबशेल इज s. If the value of L is 1, the subshell is P. If the value of L is 2, the subshell is D. And if the value of L is 3, the subshell is F. यानी सबशेल के रिगार्डिंग कि हमें पता करना हो कि कौन सी सबशेल है, तो हमें L की वैल्यूज देखनी होंगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और कितनी सबशेल है वो हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला 0 to n-1। क्लियर? अब एक चीज मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अभी इसमें हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूलाज कि किस शेल में कितनी सबशेल है और पर्टिकुलरली कौन सी सबशेल है। तो एक चीज फिर से ध्यान से देखिए, अगर आपको पता लगाना हो कितनी सबशेल्स हैं, दिस फॉर्मूला गिव्स अस हाउ मैनी सबशेल्स 0 to n-1। और कौन सी सबशेल? विच सबशेल? फॉर दैट वी हैव टू सी द वैल्यूज ऑफ L बाय यूजिंग दिस। अब एक चीज और, L की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3, दैट वी हैव टू रिमेंबर। स्टार लगा के लिख रहे हैं ताकि गलती कुछ ना हो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L इज 3। 3 क्यों है? क्योंकि 3 के बाद बेटा 3 में आपकी F सबशेल आती है, F के बाद G सबशेल है या H सबशेल है, वो अभी प्रॉपरली डिस्कवर नहीं हुई है, या यू कैन से कि प्रॉपरली आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुई है, क्योंकि हमारे सिलेबाई में F सबशेल तक है। देयरफॉर L की जो मैक्सिमम वैल्यू आप लेके चलोगे वो क्या लेके चलोगे? 3। तो एक बार प्रैक्टिकली वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले फिर से देखते हैं। पहला फॉर्मूला ये हमें बताएगा कितनी सबशेल्स है, हाउ मेनी सबशेल्स। L इज इक्वल टू 0 to n-1 एंड टू विच पर्टिकुलर सबशेल कौन सी है, कि S है, P है, D है, F है। फॉर दैट हमें इन वैल्यूज को देखना होगा। इफ द वैल्यू ऑफ L इज 0, S सबशेल, 1 P, 2 D एंड 3 F। नाउ जस्ट चेक आउट। सो आई विल रिमूव दिस, चेक करते हैं।
जस्ट सी नाउ, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1, हम शेल से स्टार्ट करते हैं, चलिए दिस इज द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में क्या होगा बेटा, जो आपकी n की वैल्यू है दैट इज 1। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1 तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0। कैसे आएगी चेक कराते हैं। l का फॉर्मूला क्या है, मैं यहां नोट कर रहा हूं, l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, यानी आपको 0 से स्टार्ट करना है और n में से 1 माइनस कीजिए, वहां तक की वैल्यूज आपको लिखनी है। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, क्लियर। हम इसको यहां पर भी सॉल्व कर लेते, कोई इशू नहीं। l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, यानी l की वैल्यू 0 से शुरू करनी है, मैंने कर दी। अब n में से एक वैल्यू माइनस कीजिए, 1, तो 1 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। इट मीन्स l की वैल्यू क्या है, सिर्फ 0, क्लियर। सो l की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ l 0, कि मेरे पास एक सब शेल है जिसमें l की वैल्यू क्या है, 0। सिमिलरली अगर हम सेकेंड शेल में जाएंगे, सो n इज 2, अब l की वैल्यूज आएंगी 0 और 1, कैसे, जस्ट सी आउट, l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, देखिए 0 से स्टार्ट किया। अब बेटा आपकी n की वैल्यू क्या है, 2, सो 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1, यानी मुझे 0 से कहां तक जाना है, 1 तक जाना है, क्लियर। तो दो वैल्यूज आ गई, 0 एंड 1। सिमिलरली अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3, अब l क्या आएगा, 0 1 2। अब एक चीज ध्यान करो, आपकी l की वैल्यू n से एक वैल्यू कम रहेगी, जैसे 1 है तो 0 तक, 2 है तो 1 तक, 3 है तो 2 तक, ऐसे आप इसको लर्न करेंगे। सिमिलरली अगर हम फोर्थ शेल में जाएं, n की वैल्यू क्या है, 4, नाउ l इज इक्वल टू 0 1 2 3। सिमिलरली बेटा अगर हम फिफ्थ शेल में जाएंगे, फॉर द फिफ्थ शेल n इज इक्वल टू 5, अब l की वैल्यूज आनी चाहिए 0 1 2 3 4, बट याद कीजिए मैंने आपको क्या कहा था, l की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, 3 से ज्यादा l की वैल्यूज नहीं होंगी, बी क्लियर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l इज 3, ये आपको बहुत अच्छी तरह अपने माइंड में ध्यान से रखना है, क्लियर। तो चलिए इसको रब करते हैं। फिफ्थ शेल तक हमने वैल्यूज लिखी। सिक्स्थ शेल n इज इक्वल टू 6, l अब भी वही रहेगा 0 1 2 3, एंड सेवंथ शेल के लिए बेटा n इज इक्वल टू 7, l इज इक्वल टू 0 1 2 3। सो ये आपने l की वैल्यूज लिखी है। अब देखते हैं फर्स्ट शेल में आइए बेटा, एक वैल्यू है, इट मींस मेरे पास एक सब शेल है। कितनी सब शेल है, एक सब शेल। आई राइट 1 सब शेल। यहां पर दो वैल्यूज हैं, देन आई विल गेट 2 सब शेल्स। हियर 3 वैल्यूज इन द थर्ड शेल, 3 सब शेल्स। फोर्थ में 4 सब शेल्स। फिफ्थ में, अब क्योंकि मैक्सिमम सब शेल हमारी 4 ही है, एस पी डी और एफ, तो बाकी सभी शेल्स में आइदर इट इज फिफ्थ शेल, सिक्स्थ और सेवंथ, वी आर हैविंग 4 सब शेल्स। सो ये मैंने आपको लर्न भी कराया था जब हमने कॉन्सेप्ट किया था रिगार्डिंग द शेल एंड सब शेल, कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल होगी, सेकेंड हैज 2, थर्ड हैज 3, फोर्थ हैज 4, रेस्ट में वी आर हैविंग द 4 सब शेल्स। Now what are the name of these subshell, that is very important. So name के लिए बेटा इसको रब करते हैं, अभी यहीं पर नेम चेक करेंगे। नेम के लिए देखिए मैंने आपको भी बताया था कि if the value of L is 0 तो S सबशेल होगी, 1 में P, 2 में D और 3 में F। सो बेटा पहले फर्स्ट शेल को कैरी करते हैं। फर्स्ट शेल में एक सब शेल है जिसमें L की वैल्यू 0, 0 मीन्स S सब शेल, और ये S कौन सी शेल की है, फर्स्ट, सो कंप्लीट नेम इज 1S। सेकेंड में आइए, वी आर हैविंग 2 सब शेल 0 एंड 1, तो 0 के लिए क्या लिखेंगे बेटा S, 1 के लिए क्या लिखेंगे P। अब ये दोनों सब शेल सेकेंड को बिलोंग कर रही हैं, सो इनका जो नेम होगा दैट विल बी 2S एंड 2P। नाउ कम टू थर्ड। थर्ड में बेटा देर आर 3 सब शेल्स, L0 के लिए वी विल राइट S, L1 के लिए वी विल राइट P, L2 के लिए वी विल राइट D। अब ऑल दीज बिलोंग टू थर्ड शेल, सो दिस विल बी 3S,
3p एंड दिस विल बी 3d। सिमिलरली बेटा जब आप फोर्थ पे आओगे तो वी आर हैविंग 4 सब शेल्स। 0 के लिए आई विल राइट s, 1 के लिए आई विल राइट p, l is 2, d, l is 3, f। now these belong to fourth shell, so they are named as 4s, 4p, 4d and 4f। similarly let's come to this side also। यहां पर देखिए बेटा अगेन 0 1 2 3 वैल्यूज हैं, तो अगर l की वैल्यू 0 है तो s सब शेल होगी, 1 में p, 2 में d, 3 में f। सो अब ये कौन से शेल को बिलोंग कर रही है? दे बिलोंग टू फिफ्थ शेल, सो आई विल राइट दिस इज 5s, दिस इज 5p, 5d and this is 5f। similarly now sixth shell, again 4 subshells, the value of l 0 1 2 3। 0 के लिए again I will write s, 1 के लिए बेटा p, 2 के लिए d and 3 के लिए f। अब क्योंकि सिक्स्थ शेल है सो दे आर नेम्ड एज 6s, 6p, 6d and this will be 6f। now come to the seventh shell, again it contains 4 subshells, value of l is 0 1 2 3। 0 के लिए I will write s, for 1 beta I will write p, for 2 I will write d, for 3 I will write f। now बेटा ये बिलोंग करती है 7th शेल को, so these are named as 7s, 7p, 7d and 7f। तो ये जो आपने अभी स्टडी किया सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर से आपको ये पता चला कि एक पर्टिकुलर शेल में कितनी सबशेल्स हैं। जैसे फर्स्ट में 1 सबशेल है, सेकेंड में 2 सबशेल्स हैं, थर्ड है 3 सबशेल्स, फोर्थ है 4 सबशेल्स, फिफ्थ में 4, सिक्स्थ में 4, सेवंथ में 4। सो ये क्वांटम नंबर पहले हमें बताएगा नंबर ऑफ सबशेल्स के रिगार्डिंगली, एंड देन द सबशेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, उसके लिए आपको ध्यान रखना है एल की वैल्यूज का। अगर आपके एल की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन इज इन द एस सबशेल, एल की वैल्यू 1 है इलेक्ट्रॉन इज इन द पी सबशेल, एल की वैल्यू 2 है इलेक्ट्रॉन इज इन द डी सबशेल, और एल की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन इज इन द एफ सबशेल। क्लियर? सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द 2 क्वांटम नंबर, और हमने अभी तक स्टडी किया शेल और सबशेल के बारे में। जब बेटा हम सबशेल के अंदर एंटर करते हैं देन विल गेट द ऑर्बिटल्स। सो जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो हमें बताएगा रिगार्डिंग द ऑर्बिटल्स। जस्ट सी आउट थर्ड क्वांटम नंबर, the third quantum number is magnetic quantum number। the symbol is small m। सो बेटा अब ये क्वांटम नंबर हमें 2 चीजें बताएगा। नंबर 1, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। आपको अच्छी तरह से एक सीक्वेंस को ध्यान रखना है कि शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। सो ये क्वांटम नंबर में बताएगा कि दिस टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल एंड द ऑर्बिटल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है। तो जैसे आपने जब सेकेंडरी क्वांटम नंबर किया था बेटा, उसने आपको बताया था कि कितनी सबशेल और किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा। सो ये आपको क्या बताएगा, कितने ऑर्बिटल और किस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो फॉर्मूला देखते हैं, m इज इक्वल टू -L2 प्लस L वाया 0 से होके। सो आपने भी स्टडी कर रखा है बेटा, हमारे पास सिर्फ 4 सबशेल्स हैं। द सबशेल्स आर S, P, D एंड F। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? S के लिए बेटा L की वैल्यू क्या होगी, 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू हो गई 3। क्लियर? अब इन सबशेल्स में ऑर्बिटल निकालने हैं। वैसे तो मैं ऑर्बिटल आपको पहले बता चुका हूं। ऑर्बिटल आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1, 3, 5 एंड 7। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल्स। मैं लिख भी देता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट में बताया था। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर था 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7। सिमिलरली आगे कंटिन्यूटी में रहेगा ये।
बट अब मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी आउट। इफ L इज 0 द वैल्यू ऑफ M इज माइनस L से प्लस L, तो बेटा 0 का तो कोई माइनस और प्लस होता नहीं है, तो वैल्यू क्या रहेगी 0। 0 मीन्स M की एक वैल्यू आई है, इट मीन्स इट हैज 1 ऑर्बिटल। हाउ मेनी ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। S सबशेल में एक ऑर्बिटल। नो P सबशेल में काम करते हैं। P में बेटा L की वैल्यू आपकी 1 होगी, और अगर आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो -1 से +1, -1, -0, +1, ये बड़ा ध्यान से करना है आपको। सो हाउ मेनी ऑर्बिटल, सी टोटल कीजिए वैल्यूज का। एक वैल्यू -1 है, एक 0, एक +1, 3 वैल्यूज आ गई। मीन्स आई एम हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन ऑर्बिटल्स के नेम px, py और एंड pz। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इनकी वैल्यूज अब आपके सामने m की वैल्यूज हैं, तो इसमें कौन सी वैल्यूज ध्यान करना है कि pz में जो m की वैल्यू होगी वो 0। pz के लिए m की वैल्यू 0। px और py में +-1, +-1। इसका मीनिंग क्या है बेटा, अगर ps में +1 लिखोगे तो py में -1 लिखोगे। क्लियर। और अगर px में -1 लिखोगे तो py में +1। यहां पर क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है तो उसका नाम एज इट इज रहेगा जो सबशेल का s, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी m की 0। सो ये मैंने आपको m की वैल्यूज ऑर्बिटल में साथ के साथ बता दी कि अगर आपसे कोई पूछे भाई px में वैल्यू बताओ m की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सो आप कहोगे +-1 मीन्स आइदर +1 और -1। सिमिलरली py में अगर वो पूछता है देन यू विल टेल सर +1 और -1। pz में अगर पूछता है 0। क्लियर। चलिए सो ये हमने किया रिगार्डिंग द P। अब स्टडी करते हैं D। L की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं यहां पे। हमने अभी तक किस किस के लिए किया है, L 0 के लिए कर लिया, ये हमारा हो गया, ये हो गया D के लिए। अब इसमें L अगर आपका 2 है तो M की वैल्यूज क्या आएंगी बेटा, -2, -1, 0, +1, +2। इन वैल्यूज को टोटल कीजिए, आराम से लिखते हैं। -2, -1, 0, +1, +2। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 1, 2, 3, 4 एंड 5 वैल्यूज। मीन्स आई एम हैविंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। सो डी में आपके बेटा 5 ऑर्बिटल्स, जस्ट लाइक दैट। क्लियर। अब इनके नेम्स बहुत इजी हैं। द फर्स्ट यू विल राइट dxy। इन वैल्यूज को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं या इनको नीचे ही नोट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू -2, -1, 0, +1, +2। फर्स्ट जो आपका d का ऑर्बिटल है dxy, dyz, dzx। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपको ध्यान रखना है। देन dx² - y² और लास्ट में dz²। ये बेटा लर्न कर रहे हैं, जैसे आपने अभी p में किया था। p में क्या था आपकी, m की वैल्यू क्या आई थी, -1, 0, +1, 3 ऑर्बिटल्स। सो उनके नेम क्या थे, दीज आर नेम्ड एज px, py एंड pz। सो दीज आर द नेम ऑफ d ऑर्बिटल्स। s में s ही रहेगा क्योंकि एक ऑर्बिटल है। ठीक है, s का कोई इशू ही नहीं था। s में l 0 था तो m की वैल्यू 0 मीन्स एक ही ऑर्बिटल आया मेरे पास, तो उसको मैं s ही कहूंगा, कोई स्पेशल नेम मैं उसको नहीं दूंगा। स्पेशल नेम कब देते हैं, जब टाइप्स में काफी ज्यादा हो। तो p के ऑर्बिटल के नेम आपको क्लियर। d के एक बार मैं फिर से बोलता हूं, द नेम ऑफ d ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। अब इनकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं वो ये हैं। कैसे लर्न करें, सबसे पहले dz² में 0, यहां पर भी pz में 0 किया था। देखो मैं साथ के साथ बता रहा हूं, कोई इशू नहीं रहेगा, दोबारा से रिवाइव भी हो जाएगा। px py में क्या किया था आपने, +-1, +-1। यहां पर कैसे करेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। +-2, +-1। क्लियर। क्या लिखा मेरा मैंने, +-2, +-1, देन अगेन +-1, +-2। अब इसका मीनिंग क्या है, जो आपकी dxy की वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, +2 भी हो सकती है और -2 भी। dyz +1 भी हो सकती है और -1 भी।
डी जेड एक्स +1 भी हो सकती है और -1 भी। सिमिलरली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर +1 और -1। सो ये आपको लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां से देखिए हम डी सब शेल से चले थे, एल की वैल्यू 2, एम की कितनी वैल्यूज आई 1 2 3 4 5। सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। पी में आपका एल का वैल्यू क्या था 1, तो एम की 3 वैल्यूज आई, देयरफॉर वी गेट 3 ऑर्बिटल्स। क्लियर। सो ये हमने स्टडी किया रिगार्डिंग कि एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी में, डी में। अब हम स्टडी करते हैं एफ में। एफ में बेटा मैं क्लियर कर दूं, एफ जो सबशेल है वो अभी रिगार्डिंग द ऑर्बिटल्स के नेम में रिसर्च लेवल पे है, तो यहां पर हम ऑर्बिटल्स के नेम नहीं करेंगे, सिर्फ उनका नंबर स्टडी करेंगे। कैसे, जस्ट सी आउट। एफ के लिए जो आपकी वैल्यू है एल की 3, सो एम की वैल्यूज क्या आएंगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इन वैल्यूज को टोटल करोगे, दीज आर 7 वैल्यूज। 7 वैल्यूज मीन्स आई एम हैविंग 7 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास, 7 ऑर्बिटल्स। सो जस्ट इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे, दीज आर 7 ऑर्बिटल्स। बट इनके जो नेम है वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। आपको नेम किनके करने हैं, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली। सो बेटा ये जो क्वांटम नंबर है, इससे आपने भी देखा कि आप सबशेल से चले s, p, d और f। सबशेल से आप किस पे पहुंचे, ऑर्बिटल्स पे, और हर पर्टिकुलर ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने फाइंड आउट किया कि px का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 -1, py का +1 -1, dxy +2 -2, dyz +1 -1, dzx +1 -1, और यू कैन से +-1, dx² y² +-2, dz² 0। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करना है। नाउ ऑर्बिटल्स हो गया, नाउ विल शिफ्ट टू द फोर्थ, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। The symbol of this quantum number is either S or ms. This quantum number tells us about the spin of electron. ये बेटा हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के रिगार्डिंग बताएगा। If the spin is clockwise, S is +1/2, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा that is said to be the alpha electron. And if the spin is anti-clockwise, value of S -1/2 and it is said to be बीटा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। सो और एक चीज और, ये तो आपने स्पिन के रिगार्डिंग पता किया कि +½ कब होगी और -½ कब होगी स्पिन। सेकेंडली, इन वन ऑर्बिटल हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ये आपको रिमेंबर है। जैसे ये एक ऑर्बिटल है, इट कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए बेटा, अपोजिट। मींस आई विल राइट स्पिन +1/2, सेकेंड की स्पिन क्या हो जाएगी, -1/2। ये देखिए, दिस इज स्पिन +1/2 और बेटा दिस वन इज -1/2। क्लियर। सो पहली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 2, और दोनों की स्पिन अपोजिट। थर्ड थिंग, इफ वन ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपने कर लिया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पिन अपोजिट होगी। बट अगर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, देन रिमेंबर उसकी स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज। रिमेंबर करना है, स्पिन इज +1/2 और -1/2। इफ एन ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, बी रिमेंबर स्पिन में बी +1/2 और -1/2। एंड इफ कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन +½ एंड -½ सो ये हमने स्टडी किया अभी रिगार्डिंग द स्पिन क्वांटम नंबर, जिसने आपको स्टडी करके बताया कि स्पिन होगी, उसकी वैल्यू 1 ऑर्बिटल में क्या, सॉरी, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है देन क्या स्पिन होगी,
अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या स्पिन होगी। अब बिफोर वी गोइंग टू द मैथमेटिकल पार्ट, एक बार बेटा हम सभी क्वांटम नंबर्स को शेल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। जस्ट सी आउट, नाउ आई विल ड्रॉ अ बिग फिगर दैट इज complete set of all quantum numbers। सभी क्वांटम नंबर हम इकट्ठे चेक करेंगे। सो बेटा हम शेल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शेल ध्यान से देखना है, दिस इज द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल द वैल्यू ऑफ n इज 1। सो l की वैल्यू आपने 0 निकाली थी। 0 मीन्स हमारी एक सब शेल थी 1s। क्लियर, ये उसका नेम हो गया बेटा। L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या थी 0, मीन्स हमारे पास एक ऑर्बिटल। और बेटा एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। तो स्पिन क्या होगी +1/2 कॉमा -1/2। इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन -1/2। ओके, चलिए नाउ सेकेंड शेल। फॉर सेकेंड शेल बेटा n की वैल्यू 2, l इज इक्वल टू 0 एंड 1। यू रिमेंबर हमने किया था, l 0 में नेम था 2s, 1 में नेम था 2p। अब बेटा 2 सब शेल आपकी सेकेंड शेल में। अब l अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या आएगी 0, और l की वैल्यू 1 है तो m क्या आएगा -1, 0 और +1। सो मीन्स 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में आपके 3 ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल इन 2s एंड 3 ऑर्बिटल्स इन 2p। सो टोटल हमारे कितने ऑर्बिटल्स आए 4 ऑर्बिटल्स सेकेंड शेल में। और सबशेल कितने बेटा 2 सबशेल्स। चलिए अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने हैं। ये बेटा एक ऑर्बिटल है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो स्पिन क्या आएगी बेटा +1/2 -1/2। यहां कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल्स। सो हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। कैसे 1 2 3 4 5 6। तो स्पिन इज 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन +3 +1/2 एंड 3 -1/2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो टोटल इलेक्ट्रॉन देखो बेटा सेकेंड शेल में कितने हुए 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 में से 3 + 1 4 की स्पिन +1/2 और 4 की स्पिन -1/2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एनी डाउट। और क्योंकि +1/2 स्पिन -1/2 को कैंसिल करती है तो नेट स्पिन 0। ये ध्यान रखिए, नेट स्पिन की अगर बात की जाए 0, यहां पर भी जो नेट स्पिन होगी वो क्या होगी 0, बिकॉज +1/2 स्पिन इज कैंसल्ड बाई -1/2। तो ये हमने 2 शेल्स का डिस्क्रिप्शन स्टडी किया। अभी रैंडमली 1-2 शेल का और स्टडी करते हैं। थर्ड शेल। फॉर थर्ड शेल बेटा वैल्यू ऑफ n is 3। If the value of n is 3, L is 0 1 2, it means I am having 3 subshells। The name are 0 के लिए बेटा मैं क्या लिखूंगा L0 के लिए 3s, 1 के लिए 3p और 2 के लिए 3d। Now मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, L0 तो m0 बेटा, L1 तो m is -1 0 +1। If L is 2 then m is -2 -1 0 +1 +2। सो यहां पर बेटा आपका एक ऑर्बिटल, यहां पर 3 और यहां पर 5। टोटल वी आर हैविंग 9 ऑर्बिटल्स। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 9। इफ आई विल ड्रॉ 1 ऑर्बिटल 3 एंड हियर 5 ऑर्बिटल। क्लियर। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 6 और यहां पे 10। सो 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट 6 1 2 3 4 5 6। दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो स्पिन देखिए बेटा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन +1/2 -1/2। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2
and 3 electron will have the spin minus half. So I will write spin is equal to 3 plus 1 by 2, 3 minus 1 by 2. Here 5 electron की spin clockwise, 5 की spin anti-clockwise. So I will write spin is equal to 5 plus 1 by 2, 5 minus 1 by 2. अगर आप इनका टोटल करेंगे, सो टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है 10 प्लस 6 16 और 2 18, तो 18 में से जो 9 इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन है प्लस 1 by 2 और 9 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है बेटा, माइनस 1 by 2. और अगर नेट स्पिन की बात की जाए तो नेट स्पिन क्या होगी, 0, बिकॉज प्लस हाफ स्पिन इज कैंसल्ड बाई माइनस हाफ. तो ये जो मैंने आपके सामने किया दिस, अब आपने सीखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेकेंडरी क्वांटम नंबर पर आए, फिर हम आए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर हम आए स्पिन क्वांटम नंबर. सो ऑल दिस क्वांटम नंबर दीज आर इंटररिलेटेड. जैसे मैंने आपको कराया अभी शेल्स मेथड में, सिमिलरली ये सभी शेल्स में होगा. इट इज़ पॉसिबल इन 4th 5th एंड 6th. चलिए एक शेल में और चेक करते हैं, क्योंकि अब तक हमने एफ का एग्जाम्पल स्टडी नहीं किया. चलिए रैंडमली लेते हैं, 7th शेल को स्टडी करते हैं. व्हाट इज इन 7th शेल? 7th शेल, फॉर 7th शेल वैल्यू ऑफ n इज 7. सो बेटा l इज 0 1 2 3. बिकॉज l की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको पता है, दैट इज 3 से ज्यादा नहीं होगी. सो दीज आर नेम्ड एज, दिस इज 7s, 7p, 7d और ये बेटा 7f. नाउ द वैल्यूज ऑफ m. l अगर 0 है तो m आपका 0, 1 में m, -1 0 +1, 2 में बेटा m -2 -1 0 +1 +2 और L3 है तो m इज -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3. अब इन वैल्यूज का टोटल करो. 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल एंड 7 ऑर्बिटल. सो टोटल वी आर हैविंग 16 ऑर्बिटल्स. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 16. जस्ट इफ आई ड्रॉ 1, this 7p has 3 orbital, 7d has 5 and 7f has 7 orbitals. Clear? So this is 1 orbital, you can say 3 5 and this one 7. अब आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2. So this contain maximum 2 electrons, this 6 electron, 10 electron and this contain 14 electrons. So total will be now 32 इलेक्ट्रॉन. अब स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ. यहां पे देखिए कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 स्पिन 6. तो स्पिन विल बी 3 + 1 by 2, 3 - 1 by 2. यहां पे बेटा फिल कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो स्पिन जो है बेटा 5 + 1 by 2, 5 - 1 by 2. सेम हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. तो स्पिन इज 7 1 by 2, 7 - 1 by 2. क्लियर? सो टोटल जो आपके 32 इलेक्ट्रॉन है उसमें से बेटा 16 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो +1 by 2, 16 इलेक्ट्रॉन की स्पिन -1 by 2 और जो नेट स्पिन आएगी वो 0. तो ये मैंने अभी आपको एक पर्टिकुलरली कुछ शेल्स में कंप्लीटली समझाया कि आप कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेकेंडरी पे आए, सेकेंडरी से फिर आप मैग्नेटिक पे आए, फाइनली स्पिन. नाउ विल शिफ्ट टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज न्यूमेरिक एंड कॉन्सेप्चुअल. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ध्यान से करना है. न्यूमेरिकल पार्ट है, अभी स्टार्ट करते हैं इसको. सेकेंड इज न्यूमेरिक एंड conceptuals. चलिए let us study. We'll start with the first question now. Question number 1. Write all quantum numbers
बेटा बहुत ध्यान से देखना है, राइट ऑल क्वांटम नंबर्स। इसमें वी विल डू फर्स्ट n इज इक्वल टू 2, b you can say what they have given 4f, c they have given first electron of sodium, and d part they have given last electron of boron। क्लियर? चलिए, और एक पार्ट और है बोरोन के बाद डी पार्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नाउ यू हैव टू राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल दी क्वांटम नंबर, सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखनी है। इसमें बेटा कुछ पार्ट और इंक्रीज करते हैं। डी ई आई विल राइट 4p, f I will write 5px, g 3dz square, and h 4dxy। चलिए, these are sufficient now, just see out। so first quantum number, sorry we have to write all the quantum number, बड़ा important है, वन बाय वन करेंगे, not a typical one। a part, let's start the solution। a part में आपको n की वैल्यू गिवन है। इफ n इज इक्वल टू 2, ध्यान देंगे बेटा l की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। ठीक है, 0 मीन्स 2s और 1 मीन्स 2p। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं इस चीज में, क्लियर, गुड। अब l की वैल्यू अगर 0 है, m इज 0, और l की वैल्यू 0 तो m विल बी -1 0 +1, वेरी इजी, नॉट अ टिपिकल वन। चलिए, सो यहां पर एक ऑर्बिटल ड्रॉ कीजिए और यहां पर आप 3 ऑर्बिटल ड्रॉ कीजिए। क्लियर? अब इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सो यहां पर जो स्पिन होगी +1/2, -1/2। यहां पर आप स्पिन क्या लिखोगे बेटा, 3 +1/2, 3 -1/2, और नेट स्पिन क्या लिखोगे, 0, क्योंकि प्लस ऑफ स्पिन इज कैंसल्ड बाई माइनस ऑफ स्पिन, रिमेंबर। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ विल डू द सेकंड, बी। बी पार्ट 4f। अब ये जो 4f है ये आपको सबशेल दे रखी है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब ये जो 4 है, ये 4 क्या है, इट सेज कि हम 4th शेल में काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं, 4th शेल, तो इट मीन्स जो n की वैल्यू है वो 4 है। अब l की वैल्यू क्या होगी, देखो बेटा आपको f क्लियरली गिवन है, क्या गिवन है, f, तो l आपको रिमेंबर हो 0 1 2 3 s p d और f दे रखा, 4f है, तो l की डायरेक्टली वैल्यू में क्या लिखूंगा, आई विल राइट l इज इक्वल टू 3, बिकॉज मेरे को सबशेल दे रखी है कि f सबशेल है। नाउ m विल बी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 orbitals this way, and 7 orbital contain 14 electron, like that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So spin will be 7 +1/2, 7 -1/2, and the net spin is 0. So this we have done the B part. So बेटा A हो गया, B हो गया, B के जैसा ये है आपका E, तो पहले E को करेंगे हम, E पार्ट। जस्ट सी E पार्ट 4p। अब 4p में ये आपका 4th शेल, 4th शेल का मतलब n की वैल्यू क्या लोगे आप, 4। अब सबशेल कौन सी है, P, इंडिकेटेड है P सबशेल। सो रिमेंबर L इज इक्वल टू 0 1 2 3। सो आप L की वैल्यू क्या लेके चलोगे अब, S P D और F 1। इफ L इज 1, M is -1 0 +1, so we are having again 3 orbitals, clear, and each orbital contain 2 electrons, so I will fill 1 2 3 4 5 6, total 6 electron. Spin is 3 plus of 3 minus of, and beta net spin comes out to be 0.
तो ये हमने किया आपका 4p और 4f सबशेल में कैसे करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे दिस पार्ट f 5px f 5px। जस्ट सी आउट बेटा, ये जो px है ये आपको डायरेक्टली ऑर्बिटल मेंशन किया गया है, ध्यान कीजिएगा क्या मेंशन कर रखा है, ऑर्बिटल। चलिए, तो 5 का मतलब इट बिलोंग्स टू फिफ्थ शेल, सो n की वैल्यू क्या लोगे आप 5। सबशेल कौन सी है, p सबशेल है, सो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब m की वैल्यू क्या लोगे, आपका ऑर्बिटल कौन सा है, px ऑर्बिटल। तो ध्यान करो बेटा, मैंने डायग्राम ड्रॉ कराया था आपको, रिमेंबर px py और pz प्लस माइनस 1 और 0। तो px में m की वैल्यू क्या लोगे आप, प्लस माइनस 1। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हो गया, प्लस माइनस 1। तो ये एक ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है ये, एक ऑर्बिटल। क्लियर? अब इस एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन विल बी +1/2 -1/2 और नेट स्पिन क्या हो गई, 0। ध्यान कीजिए, px का मतलब ऑर्बिटल दिया था आपको, क्या दिया था, दे हैव गिवन यू द ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस ऑर्बिटल का ही हमें नोट करना था। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन, सो दैट द स्पिन कम्स आउट टू बी दिस वन। सो ये हमने किया f पार्ट, f भी हो गया हमारा। नाउ वी विल डू g पार्ट। g पार्ट, जी में दे हैव गिवन यू 3dz²। अब ये 3 का मतलब इट बिलोंग्स टू थर्ड शेल। सो बेटा n की वैल्यू क्या हो गई 3। नाउ d क्या है आपकी सबशेल, d सबशेल, सो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब dz² ऑर्बिटल कौन सा है, dz²। सो रिमेंबर मैंने आपको डायग्राम कराया था d सबशेल में, लास्ट में हमने किया था dz², उसमें जो m की वैल्यू ली थी वो क्या ली थी हमने, 0। सो आई विल राइट m इज इक्वल टू 0, मीन्स एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्पिन +1/2 -1/2, नेट स्पिन विल बी 0। क्लियर? नाउ बेटा ये हमारा g पार्ट भी हुआ। देन h पार्ट, 4dxy, again see out, 4 means it belongs to फोर्थ शेल। सो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 4 लिखेंगे हम, ठीक है। अब l क्या लिखोगे, यहां d सबशेल है, d सबशेल में l की वैल्यू क्या आएगी 2। नाउ ऑर्बिटल इज xy, dxy ऑर्बिटल। रिमेंबर ये d सबशेल ड्रॉ की थी हमने, और सबसे पहला क्या था dxy, जिसकी वैल्यू क्या थी +-2। सो m यू विल राइट +-2, मीन्स एक ही ऑर्बिटल विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स हुज स्पिन +1/2 -1/2, और बेटा नेट स्पिन क्या होगी 0। सो ये आपको ध्यान करना है कि कब आपको शेल दी गई है, कब सबशेल, और यहां पर क्या दिया था आपको, ऑर्बिटल्स। नाउ h के बाद एक आई पार्ट और बनाते हैं। आई पार्ट में हम लेंगे 2px1, और जे पार्ट में लेंगे बेटा 3dxy1, और यू कैन से 2। चलिए, तो पहले हम आई पार्ट को करेंगे। अब विल डिस्कस पार्ट आई। सो व्हाट पार्ट आई सेज 2px1। सो देखिए बेटा, अब ये जो 2 है इट बिलोंग्स टू सेकेंड शेल। सो n की वैल्यू क्या होगी बेटा 2। सबशेल कौन सी है, p, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ऑर्बिटल कौन सा है, px। तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको, px py pz +-1 और इसके लिए 0। तो px में m की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1, यानी एक ऑर्बिटल। अब एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान कीजिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो मैंने क्या कहा था, उसकी स्पिन +½ भी हो सकती है
और -12 भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना। whenever one electron is there, spin may be +12 और spin may be -12. ओके, चलिए now I part be complete. now J part, J is 3dxy2. सो बेटा ये जो 3 है इट इज थर्ड शेल। थर्ड शेल मीन्स n क्या लोगे 3, L D आपकी सब शेल है, सो D सब शेल के लिए L क्या हो गया 2, और ऑर्बिटल है आपका dxy। सो रिमेंबर dxy ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या थी आपकी, द फर्स्ट वन वाज dxy +-2। सो m क्या लिखोगे बेटा आप +-2, और क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है और कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो बेटा अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्पिन +1/2 -1/2 और नेट स्पिन विल बी 0, दैट वी हैव टू रिमेंबर नाउ। सो दिस वी हैव डन सम ऑफ द पार्ट्स। अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं लेट्स सी। सो बेटा इट्स नॉट द टिपिकल वन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने कंसेप्ट को कैसे यूज करना, हाउ कैन वी यूज द कंसेप्ट। सो नाउ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सी पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज 1s1। अब मैं आपको थोड़ा बता भी दूंगा कैसे लिखा जाता है। इफ आई विल से कि आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन लिखना है, क्या लिखना है थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, क्या बनेगी 1s2 2s1। तो ये जो 2s1 है ये आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपको नोट करना है, सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए पहले आप क्या लिखोगे 4 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन, सो वो बनेगी 1s2 2s2। तो ये जो 2s2 है ये क्या है आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा 10th इलेक्ट्रॉन, सो पहले आप क्या करोगे 10 इलेक्ट्रॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। ये आएगी बेटा आपकी 1s2 2s2 2p6। तो जो 2p6 है ये आपका 10th इलेक्ट्रॉन है। और एक चीज और, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन या 10th इलेक्ट्रॉन ये एक ही इलेक्ट्रॉन है। 10th इलेक्ट्रॉन का मतलब 10वां इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स तीसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इलेक्ट्रॉन मीन चौथा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन होगा ध्यान रखिए स्पिन में भी +1/2 और -1/2, बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपने क्वेश्चन को करते हैं, सी पार्ट को, जस्ट सी आउट। ही सेज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या आएगा बेटा आपका 1s1 आए। तो 1s1 में बेटा n की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि फर्स्ट शेल को बिलोंग करता है। L S सब शेल है आपकी, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0, एक ऑर्बिटल आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब, इसको हटाइए यहां से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उसकी स्पिन इट मे बी +12 और बेटा इट मे बी -12। ओके, चलिए दिस सी भी हो गया हमारा। डी पार्ट, डी पार्ट, ही सेज लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन। चलिए ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सी आउट। सो बेटा बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा 5th इलेक्ट्रॉन। तो 5th इलेक्ट्रॉन के लिए पहले हम 5 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1। तो ये जो 2p1 है ये है मेरा 5th इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और यहां पर ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स मुझे किसके लिए लिखना है 2p1 के लिए। ओके चलिए, सो यहां पे L का n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सेकेंड शेल। L बेटा p सब शेल है 1, M अब आप कैसे लिखोगे 2p। देखिए यहां पर आपको ऑर्बिटल नहीं दे रखा है, क्या लिखा हुआ है px py और pz नहीं। सो आप L क्या लिखो, M क्या लिखोगे -1 0 +1, क्लियर। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन
प्लस हाफ और माइनस हाफ। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द यू कैन से द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद डी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सो बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करोगे, 1s2, तो ये 1s2 आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन हुआ। n क्या आएगा 1, l 0, m 0। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन विल बी आइदर +1/2 और -1/2, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नो अब इसमें एक दो पार्ट और मेरे को ध्यान आ रहे हैं, मैं भी डिस्कस करता हूं। आई जे के में मैं लगाता हूं मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। सोडियम का मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, और इसी में कर लेते हैं एंड मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। तो सोडियम में हमें मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर लिखने। तो यू नो दैट सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। कॉन्फ़िगरेशन आएगी बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालोगे 1s1, तो जो आपका मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1s1। और आपने यहां पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में डाला है 3s1, तो ये 3s1 क्या है आपका मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ध्यान करो हमने इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंगली फिल किए हैं, वी हैव फिल द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द आउफबाउ रूल, और आउफबाउ रूल के अकॉर्डिंगली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, यानी जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन और जो सबसे पहला 1s1 वो आपका मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो चलिए जस्ट राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स। तो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये हुआ बेटा 1s1। तो 1s1 के लिए n की वैल्यू 1, s आपकी सबशेल है तो l की वैल्यू बेटा 0, m 0, 1 ऑर्बिटल। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन +1/2 -1/2। ओके, चलिए नाउ मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये आएगा आपका, अभी हमने लिखा था 3s1, सो यहां पर बेटा n की वैल्यू 3, s आपकी सबशेल है तो l 0, m 0, एक ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन है, सो स्पिन इज +1/2 एंड -1/2। सो बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, जो सबसे ज्यादा यू कैन से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वांटम नंबर लिखने होते हैं, जो मैंने अलग अलग वे से आपको समझाया। क्लियर? थोड़ा लेंथी जरूर था बट हमें करना जरूर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज राइट प्रॉपर abbreviations. First part N4L0, second N7L3, third N2L1M0, fourth N4L2M0। चलिए एब्रीवेशन आपको बताना है कि ये किसको बिलोंग करते हैं, तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, N0 का मतलब फोर्थ शेल, 4 लिख दिया आपने। अब L अगर आपका 0 है तो कौन सी सबशेल होगी S, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है 4S, यानी ये जो एब्रीवेशन है ये सबशेल के लिए थी। ठीक है, सेकेंड पार्ट आइए, कौन सी शेल है 7। L3 किसके लिए होता है F के लिए, तो 7F। अब यहां पर आइए भी सबशेल था। थर्ड N2, L0 मीन्स P। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखा है
तो ध्यान कीजिए P के लिए हमने क्या किया था, Px Py Pz, तो +-1 और 0, ये आपकी m की वैल्यूज थी। सो यहां पर m की वैल्यू 0 दे रखी है, तो क्या होगा, Pz मीन्स दिस इज 2Pz। बड़े ध्यान से करना है, पहली दोनों क्या थी, दीज आर सबशेल्स, दीज आर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल कैसे पता चला आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू गिवन है, बहुत ध्यान से करना है इस चीज को। ओके चलिए, अब इसके बाद फोर्थ N4 फोर्थ शेल, L2 में क्या हो जाएगा, D 4D। अब M0 दे रखा है, तो D का ड्रॉ करके देखते हैं। D के हमने ड्रॉ किए थे, वैल्यू थी माइनस, जो यहां पर क्या है ये आपका, सॉरी व्हाट इज M0, तो M जो 0 आया था वो dz² के लिए आया था। किसके लिए आया था, dz²। और ऑर्बिटल फिर से रिमाइंड करा दूं मैं आपको, जो ऑर्बिटल्स थे dxy dyz dzx dx² माइनस y² और dz²। सो यहां पे m की वैल्यू दे रखी है 0, इट मीन्स इट इज 4dz²। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, अब इसी में एक पार्ट और स्टडी करेंगे, फिफ्थ पार्ट। He says N4 L1 M0 स्पिन +½ और -½ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, N4 का मतलब फोर्थ शेल, L1 का मतलब P सब शेल, M0 का मतलब Px, और स्पिन +½ और -½ मीन्स एक इलेक्ट्रॉन। सो ऊपर क्या लिखेंगे, 1 4px1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ध्यान कीजिए, +½ और -½ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान करना इसमें, नेवर गेट कंफ्यूज्ड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 2 आर कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, which of the following quantum number set is incorrect। आपको बेटा कुछ क्वांटम नंबर के ना सेट गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट। सो जस्ट सी द फर्स्ट वन। He says n equals to 0, L equals to 0, M0, S + 1/2। पहले इसी को चेक करते हैं। हमें जो पहली वैल्यू है, ध्यान कीजिएगा, हमें किससे काम करना होता है, फर्स्ट वैल्यू से। आपको फर्स्ट वैल्यू के लिए बाकी सारी वैल्यूज को चेक करना है। तो क्या N0 एग्जिस्ट करेगा, N0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मीन्स आपका जो सेट है वो क्या है, इनकरेक्ट। बी पे आइए, बी है n equals to 1, L0, M0, स्पिन -1/2। अब चलिए देखते हैं, n equals to 1 फर्स्ट शेल, ओके। अगर n equal to 1 तो L की वैल्यू भी 0, ठीक है। m की वैल्यू भी क्या है, 0। m की वैल्यू 0 का मतलब एक ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल बेटा इसमें, एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब स्पिन +1/2 -1/2 और नेट स्पिन 0। यहाँ पे आपको जो स्पिन दे रखी है वो क्या दे रखी है, -1/2। तो क्या ये -1/2 स्पिन यहाँ पे हो सकती है, चेक करो। +½ और माइनस बिल्कुल गिवन है, ठीक है। बट अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने ये आता है कि ये जो आपको इन्होंने स्पिन दे रखी है, ये नेट स्पिन दे रखी है या वैसे। तो मैं क्लियर आपको कर देता हूं, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो इन्होंने दे रखा है यहां पर कि ये जो स्पिन नेट स्पिन है, वो तो लिखने पर मेंशन होगा कि नेट स्पिन है या नहीं। अब यहां पे इन्होंने नेट स्पिन नहीं है, ये नेट स्पिन के लिए NET लिखेंगे, मीन्स ये नेट स्पिन नहीं है, तो ये कंसेप्ट तो खत्म हो गया। अब यहां पर आया +½ -½ तो मुझे ये चेक करना है कि N1 के लिए L0 था, होता है L0, और M0 भी होता है,
और स्पिन माइनस हाफ। अब ये चेक करना है क्या स्पिन माइनस हाफ है या नहीं है। तो स्पिन क्या है हमारी, माइनस हाफ है, तो मीन्स दिस सेट इज आल्सो द करेक्ट। तो आपने चेक कैसे किया, स्टार्टिंग वैल्यू से आपको चेक करना है। जो वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी है उसके लिए बाकी सारी वैल्यूज को क्या करना है, चेक। और नेट स्पिन अगर दे रखा हो तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉर्मल स्पिन मान के चलेंगे। क्लियर। चलिए नाउ वन मोर वी विल सी। सो दिस इज 2 केसेस वी हैव डन। वन मोर एग्जांपल, जस्ट सी आउट। M0 S प्लस हाफ। चलिए अब ये M0 का मतलब मेरे पास एक ऑर्बिटल है, क्लियर, और उस ऑर्बिटल की स्पिन आपको दे रखी है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन बनेगी वो क्या बनेगी, +1/2 और -1/2, और नेट स्पिन क्या बनेगी, 0। अब ये नेट स्पिन नहीं है तो कंसेप्ट खत्म हो गया। अब चेक करो प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये प्लस हाफ ये प्लस हाफ है, मीन्स द सेट इज करेक्ट। तो काम कैसे करना है, जो आपको पहले गिवन है उसके लिए बाकी वैल्यूज लिखनी है, यू हैव टू चेक कि वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, बहुत ईजी था। हिंट भी मैंने आपको बताया, जो क्वांटम नंबर पहले दे रखा है उसके लिए बाकी वैल्यूज लिखनी है और फिर उनको चेक करना है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, विच डज नॉट एग्जिस्ट एंड वाई। कौन एग्जिस्ट नहीं करता रीजन के साथ, 1D, देन वी विल डिस्कस 2F, देन वी विल डिस्कस 3S। चलिए 3 में डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस इन द 3। अब 1D चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे, यहां से फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, L बेटा n अगर 1 हो तो L की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 का मतलब S सब शेल, बट यहां कौन सी सब शेल दे रखी है, D, गिवन इज D, और D के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 2। तो क्या आपकी L की वैल्यू 2 है, नहीं है, ठीक है, L की वैल्यू क्या है, 0। D के लिए L की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 2, जो कि नहीं है, देयरफॉर दिस डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या बताओगे, फॉर D L कितना होना चाहिए, 2, बट हमारे पास L कितना है, 0। तो 0 के अकॉर्डिंगली S हो सकता है, D नहीं हो सकता, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली 2F पे आइए, ये n क्या लोगे आप, 2। n अगर 2 है तो बेटा L 0 और 1 होगा, 0 1 में ये होगा आपका S और P, बट यहां कौन सी सबशेल है, F, गिवन सबशेल इज F। F के लिए L क्या होता है, 3, क्या 3 है हमारे पास, नहीं है, सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, ये आपको ध्यान करना है, इससे चेक करना है n की वैल्यू से। अब n2 में हमारी L की वैल्यू 0 और 1 थी, जबकि F के लिए L की वैल्यू क्या चाहिए, 3, जो हमारे पास नहीं है, इट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ 3S में n क्या है बेटा आपका 3, तो L क्या हो जाएगा, 0 1 2, मीन्स S P D तीनों पॉसिबल है। हमें गिवन क्या है, S, देखिए मैच हो गया, सो दिस विल एग्जिस्ट। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। वैसे तो बेटा आपको देखते ही पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बट रीजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हमें ऑर्बिटल्स का नंबर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है N3L2, ठीक है। चलिए बेटा N3 का मतलब थर्ड शेल, L2 का मतलब कौन सी सबशेल होगी, D सबशेल। तो D सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके। कैसे पता चला, m इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। सो सेकेंड पार्ट, N5L1, बेटा N5 का मतलब फिफ्थ शेल, L1 का मतलब P,
तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 +1 मीन्स वी आर हैविंग 3 ऑर्बिटल्स। कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज में। चलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ n is equal to 5, how many electrons will have m + 1? चलिए, आपको इलेक्ट्रॉन बताना है जिनमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, +1। बड़ा इंपॉर्टेंट, n5 का मतलब 5th शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, +1। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सो n इज 5, सो बेटा l क्या होगा, 0 1 2 3। अब इसमें एक चीज मैं आपसे क्लियर करूंगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने पूछ रखा है मैक्सिमम। क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम। थोड़ा इस चीज पे हम ध्यान देंगे कि मैं यहां पे 4 लूं या ना लूं, इस चीज पे मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा के रखता हूं। हमारे सिलेबाई के अंदर अगर बात की जाए तो हमारी जो L की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो 3 है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 आपको यहाँ पे नहीं लेके चलना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप m क्या लोगे बेटा, यहाँ पे 0, इसमें m क्या आएगा, -1 0 +1, इसमें m क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पे m कितना आएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब देखिए कितने ऑर्बिटल में m की वैल्यू +1 है, 1 2 3। कितने ऑर्बिटल, 3। मीन्स 3 ऑर्बिटल्स विल हैव द वैल्यू ऑफ ml +1। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। सो बेटा 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई डाउट इसमें? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहां पर L की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेके चलनी है, 3। बिकॉज मैं क्लियर करूं, अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था, तो एक बुक ने क्या ले रखा है, L का वैल्यू 4 ले रखा है। तो 4 बेटा जो आपकी सबशेल है G, वो हमारे सिलेबाई में नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, प्रॉपरली डिस्कवर्ड भी नहीं है, तो हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, L की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेके चलनी है, आपको 3 लेके चलनी है। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव डन you can say big topic, that is quantum numbers, one of the important topic, and we have done a lot of numericals of all the types. Just revise the topic carefully. और अगर आपको इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, then quantum number are the best alternates. Clear to all of you? So this is all about the topic quantum numbers. That's all.